يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. سورۃ الحج آیت نمبر 20 تا 24 کی میں نے تلاوت کی، اس کی ترجمانی سماعت فرمائیے۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا بھی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ کسی شاعر نے کہا قرآن سے متعلق، زمانہ بھر کی کتابوں میں وہ کمال نہیں، زمانہ بھر کی کتابوں میں وہ کمال نہیں، زوال سب کو ہے قرآن کو زوال نہیں۔ یہ فیصلہ خدا کا ہے میرا خیال نہیں، نبی کی آل سے بہتر کسی کی آل نہیں۔ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کی 1 دسمبر تا 20 دسمبر ملکگیر سطح سیکریٹری عبداللہ مدثر صاحب اور جناب محترم گلوبل اسکول کے ذمہ دار اظہر صاحب، لیڈی کنوینر اور یہاں کی ایچ ایم صاحبہ، ڈائس پر تشریف فرما محترم سندھے صاحب اور خورشید صاحب لوکل پریزیڈنٹ آئیٹا، سیکریٹری حسینی صاحب لوکل آئیٹا، یہاں آئے ہوئے قابل قدر معلمات و معلم و معلمات، اور یہاں پر ہماری اس پروگرام میں شرکت کرنے والے کڑا ٹیچرز بھی ہیں، الحمدللہ ان سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر نہیں ہوگی بلکہ مجھے اس بات کی طرف یاد دہانی کرانی ہے کہ جو ہماری آئیٹا آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کی مہم 1 دسمبر تھا 15 دسمبر جو رکھی گئی تھی، ویسے ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے، مختلف اضلاع میں بعض مقامات پر ابھی کام چل رہا ہے۔ ہم نے 12 مرتبہ آئیٹا کا مقصد کو سنا ہے، اس مقصد کے لیے آئیٹا کام کر رہی ہے اور کس طرح ٹیچرز کو ایک آئیڈیل ٹیچر بنانا چاہتی ہے۔ یہ آل انڈیا تنظیم ہے، ٹیچروں کے مسائل پر گفتگو کرتی ہے، ان کے اپنے
जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करती है, चाहे वो सरकारी स्कूल का मसला हो, सरकारी स्कूल के टीचर का मसला हो, या प्राइवेट स्कूल्स के ग्रांटेड अनग्रांटेड। फिर ये अल्लाह का एहसान है कि इसमें काबिल तरीन असातिज़ा प्राइमरी से लेकर पूरे कॉलेज और प्रोफेसर तक इसके मेंबर्स हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर। आइटा यही चाहती है कि एक आइडियल टीचर, हमको मालूम है कि एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए। जब उसका शागिर्द उसे देखे तो ये कहे कि मुझे ऐसे टीचर के पास इल्म हासिल करना चाहिए, मुझे ये फ़लाँ टीचर ने इस तरह से तालीम दी थी, मैं जिसकी वजह से आज इस ग्राउंड में, इस मैदान में आया हुआ हूँ। हम यही चाहते हैं कि मुअल्लिम की जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा उसका हक़ अदा करे। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, जो सिलेबस उसे दिया जाता है उसके ज़रिए से बच्चे के अंदर वो तालीम के जो मालूमात हैं उसको फराहम करें, उसको मुंतकिल करें। फिर आप देखते हैं, मैं और आप जिस बचपन में प्राइमरी स्कूल जाते थे वो दौर कुछ अलग था, आज का दौर कुछ अलग है। आज साइंस की दौड़ है, आज टेक्नोलॉजी की दौड़ है, आज मुख्तलिफ मैदान खुले हुए हैं जिसे बच्चे, मैं समझता हूँ जो एक 15 साल पहले का 10th का बच्चा आज इक्वल अगर हम देखेंगे तो 5th का बच्चा उससे आगे निकल चुका है। इसके लिए असातिज़ा की जिम्मेदारी ये है कि हम प्रिपेयर्ड होकर अपनी क्लास में जाएं, हमारा अपना सिलेबस जो है उससे मुकम्मल हमको आगाही हो। मैं जिस चीज़ को बच्चे को बताने जा रहा हूँ उसके लिए वो बहुत ज़्यादा तैयारी करे, बल्कि वो एक क्वेश्चन करता है बच्चा तो उसके 10 जवाब में देने के काबिल होके जाऊँ, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो। ये आइटा याद दिलाती है। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म है आइटा का जहाँ पर लोगों को इसका मेंबर बनाया जाए। ये मुहिम चढ़ी गई, मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते हैं, ये अपना एक प्रोग्राम रखती है और यही बातें असातिज़ा को तैयार करना चाहती है, ताकि आप देखेंगे मैं और आप जिस मुल्क में रहते हैं, अगर जिस स्कूल के असातिज़ा अच्छे होते हैं तो वो तलबा हमेशा ज़हीन, और टीचर का ये काम होता है कि वो बच्चों पे जब वर्क करता है तो उन बच्चों को मुंतखब कर लेता है। जो ज़हीन टैलेंट होते हैं उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइटा यही चाहती है कि ऐसे असातिज़ा को तैयार करे और इनके जो काम हैं इसको याद दिलाया जाए, ताकि ये जो नौनिहाल बच्चे हैं ये हमारे बड़े अहम शहरी होने वाले हैं। इनको मुल्क की बागडोर संभालना है, इनको महल्ले की बागडोर संभालना है, इनको समाज को सुधारना है। तो ये सबसे बड़ा रोल, जैसा ड्राइवर जिस तरफ भी मोड़ता है स्टीयरिंग, गाड़ी उस तरफ मुड़ती है, तो टीचरों के हाथ में है कि अपनी कौम को, अपने समाज को हम किस तरफ मोड़ें। आज देखते हैं, हाँ मोबाइल का दौर चल रहा है, मोबाइल हमारे हाथ में है, बच्चे के हाथ में है, हर के हाथ में है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना हम टीचर सिखाएं उसको। बच्चे के अंदर ये टैलेंट लाए, बच्चे के अंदर वो शौक पैदा करें कि बच्चा मोबाइल आप रोक तो नहीं सकते, किसी तरह से बच्चा किसी कोने में जाएगा, किसी तन्हाई में जाएगा, मोबाइल का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके अंदर एक आप ऐसा शौक पैदा करिए कि इसके ज़रिए से बच्चा कुछ मालूमात हासिल करे। बहुत बड़ी दुनिया है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हमको फराहम होते हैं, मिलते हैं। ये असातिज़ा के अंदर टैलेंट और उनको एक आइडियल टीचर बनाना चाहती है। दूसरी तरफ तलबा के अंदर अभी हमने हमारे मोहतरम शिंदे साहब से सुना कि बच्चों के अंदर अखलाक को पैदा करें, बच्चों को किरदार इनको सिखाएं कि मैं जो तालीम दे रहा हूँ, बच्चा अगर यहाँ स्कूल आने के बाद ये सीखे कि वो घर जाके अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसी का और अपने उस्ताद का अगर वो अदब करने वाला बनता है तो वो तालिब इल्म में और दूसरे तालिब इल्म में, दूसरे बच्चों के इसमें फ़र्क महसूस होता है। आप देखेंगे अगर किसी के हम घर अचानक चले गए, बच्चे के अगर किरदार देखते हैं तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं पूछते हैं। तो ये बच्चों के अंदर एक मॉरलिटी हम आइटा के ज़रिए से लाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक पीरियड अब
चल रहा है, चालू हो चुका है। तकरीबन मदारिस में, तकरीबन स्कूल्स में ये सिलेबस को रख दिया गया है कि बच्चों को अखलाकियात की तरफ लाया जाए। इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स कम हैं। हम टीचरों के मसाइल के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा आगे आते हैं और बच्चों के स्कॉलरशिप वगैरह के वास्ते भी आइटा काम करती है। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी नाइंसाफ़ी होती है असातिज़ा के साथ। मैं कुछ ही दिन पहले, हमारे फुरखान सर मौजूद हैं, उन्हें मालूम है, बीदर में कंपलसरी असातिज़ा को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर बाद में उनकी जब काउंसलिंग हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दोबारा फ्री प्लेसेस पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन इसके अंदर एक कमज़ोरी ये हो गई कि बाज़ असातिज़ा, बाज़ ख़वातीन को भी, यहाँ तक उसमें बाज़ ख़वातीन भी थे, उर्दू मीडियम और कन्नड़ मीडियम के भी, वो प्लेसेस ख़त्म हो गए बोल के वापस कर दिया गया। जब DDP साहब से बात हुई और दूसरे ज़िम्मेदारों से बात होने के बाद बोले नहीं, इसको आसानी से हल कर लिया जाएगा, ऊपर से आर्डर लाया जाएगा। 2-3 साल हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे कई मसाइल हैं असातिज़ा के, परेशान हैं, 30-30 किलोमीटर दूर जाके आ रही, घरों के मसाइल है टीचरों के। हमारे ऑफिसर्स को इस तरह के मसाइल को आइटा याद दिलाती है और इसके लिए जद्दोजहद करती है। ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए आइटा अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रही है। यहीं पर नहीं बल्कि दिल्ली में भी हमारे आइटा के ज़िम्मेदारों ने स्कॉलरशिप के ताल्लुक से वहाँ के ज़िम्मेदारों से भी मिला है। तो ये मुसलसिल काम हो रहे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे हर स्कूल के टीचर्स इसके मेंबर बने। ये मुहिम इसीलिए रखी गई, इसके मेंबर बने ताकि जब हमारी ताकत ज़्यादा हो जाए तो हमारे अपने मसाइल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, कोविड के अंदर पूरे स्कूल्स बंद थे, अनएडेड स्कूल्स के टीचर बड़े परेशान थे। आइटा ने जो कुछ भी हो सका, कुछ माली मदद, कुछ किट्स के ज़रिए से आइटा ने उन बाज़ असातिज़ा की मदद करने की कोशिश की। ये एक मिसाल बन गई। इसके बाद बीदर के दूसरे ताल्लुक़ात वालों ने भी इसी तरह से काम किया। तो ये तमाम मसाइल जब भी ऐसे आते हैं तो आइटा इस पर गौर करती है, सोचती है और प्रोग्राम बनाती है। इसीलिए हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि आप आइटा का मकसद देखें, पढ़ें, पढ़ने के बाद आइटा के मेंबर बने और आप भी जब कभी इसके प्रोग्राम होंगे, जिस तरह से भी प्रोग्राम होंगे, आप उसके अंदर शिरकत फरमाएं। हमारे ज़िम्मेदारान इसके ताल्लुक़ से मुख्तलिफ बातें आपके सामने बताएंगे। और ये हमारा एक समाजी काम नहीं बल्कि हमारा ये फ़र्ज़ है। हम बाहैसियत एक मुसलमान होने के, हमको दुनिया में जो काम कर रहे हैं इसकी जवाबदेही आखिरत में अल्लाह के पास देनी है। और कामयाब टीचर जब ही हो सकता है वो अपने आप को देखे कि मैं कहाँ तक इस पर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइटा की मुहिम ये इसलिए भी रखी गई है कि ये अपने पास एक शोरायत रखती है। इसके इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात में मेंबर्स, इसके लिए इसमें मुकामी यूनिट में सबसे अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार वाला जो टीचर होता है उसको मुकामी यूनिट का सदर बनाया जाता है। इसकी एडवाइजरी काउंसिल होती है। इसके मेंबर्स मिलके स्टेट लेवल पर एक एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। वो एडवाइजरी काउंसिल मिलकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट बनाती है। इस तरह से इसका पूरा नज़्म है पूरे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट तक। ये इंतखाबात अब आइंदा होने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुहिम के ज़रिए से ज़्यादा असातिज़ा हमारे इस आइटा के मेंबर बने, वो भी इस इंतखाबात में हिस्सा लें। हम में सबसे बेहतर जो टीचर है उसको आगे बढ़ाएं, उसके ज़रिए से जो टैलेंट है, जो काबिल है, उसको आगे बढ़ाकर आइटा का, असातिज़ा का जो काम है उसको हल करने की हम कोशिश करेंगे। यही कुछ बातें थी जो आपके सामने रखने थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको एक बेहतरीन और आइडियल टीचर बनाए। हमारे हाथों से अल्लाह ताला इन बच्चों के लिए जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या मुराहिम। शुक्रिया। सबसे पहले मैं इजलास में इस्तक़बालिया कलमात कहना चाहता हूँ। उसके बाद मुख्तसर 1-2 बातें कहते हुए आपसे यहाँ जगह लूँगा अपनी मैं। सबसे पहले मैं हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मुराद मोहम्मद
अजहरुद्दीन साहब जो ग्लोबल एजुकेशन के नाम से बीदर में फेमस हैं। आपकी मेहनत कोशिशों को तकरीबन मैं 25 साल पहले मेरा उनका रब था, क्या 25-30 साल, हाँ, बहरहाल बहुत मौके मिलते थे आपसे मिलने के। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हफ़्ता पहले आपसे मुलाकात किए कि हमारा एक प्रोग्राम छोटा सा एक मुहिम का करना चाहते हैं, तो उन्होंने बाखुशी इजाज़त दिया। हम अल्लाह से दुआ है और ख़ासकर उनका इस्तक़बाल करते हुए कि उनका इदारा और तरक्की करे और आपको सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। तो उसके साथ आपको यहाँ पर मेहमान के तौर पर हम मदऊ करते हैं और जनाब मोहम्मद मोज़न साहब जो हमारे अमीर मुकामी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सलाहियत रखते हैं और हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो मैं उनका भी यहाँ पर सदर की हैसियत से मदऊ करता हूँ, दावत देता हूँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और इस कार्रवाई की आगे बढ़ाने की सदर जलसा हैं चूँकि इजाज़त देना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे होनहार ऑफिसर आली जनाब सैयद फुरखान पाशा साहब, वो बेहद मसरूफ़ रहते हैं लेकिन हमारी दावत पर लब्बैक कहा। हम उनका भी हमारे आइटा ग्रुप की जानिब से तहे दिल से उनका यहाँ खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे दरमियान हैं जनाब इनायतुर रहमान सिंधे साहब, जो एक हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए उनकी कोशिशें हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखी जा सकती हैं और यादगार हैं। उनका हम हमारी सी छोटी तकरीब में दावत दिए, वो भी यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम में हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सभी मालूम है आइटा क्या करती है। तो मैं सब की जानिब से आपका भी खैर मक़दम इस्तक़बाल करता हूँ। और इसी के साथ साथ आली जनाब हमारे ज़िले सदर हैं आइटा के आरिफुद्दीन साहब, ये भी हमारे दरमियान रहते हैं। ये हमारे दोस्त, करीबी दोस्त हैं। मैं उनका भी हमारे सब की तरफ से उनका इस्तक़बाल करता हूँ। और साथ साथ अब्दुल्ला मुदस्सिर साहब जो एक यंग जनरेशन में उभरते हुए एक, हम यूँ समझ सकते हैं, एक रोशनी की किरण हैं। मैं हमारे अब्दुल्ला मुदस्सिर साहब का भी हम सब की तरफ से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। और साथ साथ हमारे हरदिल अज़ीज़ दोस्त जनाब मोहम्मद हुसैनी साहब, अमजद हुसैनी साहब, जो निज़ामत के फ़राइज़ बहुत बाखूबी अंजाम देते हैं, मैं उनका भी यहाँ इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक यूनिट में एक प्रोग्राम हमने हमारे मशवरे से तय किया, उसको कर रहे हैं। एक हमने टाइटल दिया है, आओ अज़्म सफ़र ताज़ा करें। आओ अज़्म सफ़र ताज़ा, क्योंकि हम मुसाफिर हैं, अभी जारी है सबका यानी टीचर्स का, तो उसी सफ़र को ताज़ा करने के लिए हमारे ऊपर से जो अहकामात आए हैं कि मिंबर साजी की मुहिम, उसी सिलसिले के एक आखिरी कड़ी जो हमारे ग्लोबल स्कूल में मुनक़िद हुई है। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम टीचर्स, सुदूर मदरसा, तमाम ये यहाँ के मदरसे हाजा के टीचर्स का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। वो आकर हमारे प्रोग्राम को शोभा दिलाए। एक लफ्ज़ मेरे जब ये टाइटल दे रहे थे, आओ अज़्म सफ़र ताज़ा करें, तो ताज़ा के ताल्लुक़ से मेरे जहन में एक बात याद आई। वो ये है कि हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करते हैं और वज़ू करते हैं, जिससे गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं, जिससे तबीयत में बशाशत और राहत पैदा होती है, जिससे तबीयत में बशाशत और राहत पैदा होती है, बेचैनी ख़त्म होती है, तबीयत में बहार राहत आती है। इसी तरह आइटा में भी हम टीचर्स में और मदारिस में, टीचर्स में भी और मदारिस में भी हमेशा राहत देखना चाहते हैं और बहार लाने की कोशिश है। यह आइटा का एक मकसद है। आजकल जहर आलूदा माहौल हो चुका है,
اور آئٹا یہ چاہتا ہے کہ جو آپسی زہر کو دور کر دیا جائے اور ایسا شہد آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مہیا کیا جائے، جس سے ٹیچرز کو بھی فائدہ ہو اور ہماری نسل کو بھی فائدہ ہو. یہ ایک چیز ہے. اور ایسا تازہ چشمے کا پانی بولتے ہیں نا، ویسا تازہ علم ہمارے آئٹا کے ذریعے سے ہم بہتر پانی پلا کرنا چاہتے ہیں، جس سے ٹیچرز کو اور طلباء و طالبات کو بھی فائدہ ہو. ہمارے جو پروگرام جو چلا الحمدللہ، جیسا کہ ہمارے نظامت کے سر نے فرمایا، اس میں کئی لوگوں نے آئٹا مہم میں آئٹا کے فارم بھر کر دیے، ابھی بھی یہاں پر بھی اسکول میں بھر کے دیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک آئٹا جو تنظیم ہے ہماری، تقریباً ہندوستان کے 20 ریاستوں میں پہلے کا یہ ہے، اور ہو سکتا ہے بڑھ بھی گئے ہوں گے، یہ آئٹا منظم طریقے سے چلتی ہے 20 ریاستوں میں. آپ کبھی بھی آئٹا کے تعلق سے یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے کرناٹک میں تقریباً 19 اضلاع میں یہ کام ہو رہا ہے، بخوبی انجام دیا جا رہا ہے. اور ہم آئٹا کے ذہن میں ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ایک ٹیچر ہم ڈیوٹی پر آتے ہیں بخوشی، ریٹائرمنٹ تک جو فرائض انجام دیتے ہیں وہ بھی بخوشی رہیں، نہ کہ زبردستی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ نہ سمجھتے ہوئے بھی آگے بھی جو بھی ٹیچر، معلم، معلمات ہیں، خدمت کرتے رہیں، تاکہ قوم کو ہمیشہ ہماری ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہمارے درمیان رہتے ہیں ان کی صحیح فائدہ پہنچے. تو ہر ایک دیکھے تو ایک ٹیچر کم از کم 30 نسلوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. ایک نسل نہیں بلکہ 30 نسلوں کو سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے. یہ الحمدللہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. تو میں ان کا بھی ممنون ہوں جو ہمارے آئٹا کے LAC ممبران ہیں، اور دوسرے بھی کئی اشخاص، کئی ٹیچرز نے فارم بھر کر لا کر دیا، محنت کوشش کی، مدارس کو گئے، اسکول گئے. میں ان کا آبھاری ہوں، کبھی ان کو بھول نہیں سکتا. تو میں یہاں پر ایک بات کہتے ہوئے کہ تمام کا استقبال، چھوٹا سا تعارف کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے یہ پروگرام ایسے ہی ہوتے رہیں گے. ہم کسی بھی تو آپ لوگ تشریف لائیے، ہماری بھی ہمت افزائی ہوگی، اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ہمارے معزز مہمانوں کی طرف سے ایک چیز یادگار اور زرین معلومات بھی مہیا ہوں گے. اتنا کہتے ہوئے میں جو 2 تھے، ایک استقبالیہ کلمات تھے میرے ذمہ، اور افتتاحی پروگرام بھی تھا، اسی کو کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ایک درمیان میں ہمارے لیڈیز کنوینر شاہین فاطمہ ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. شاہین فاطمہ، اور یہاں کے آپ کے کون ہیں بولے تھے نا، ان کو تشریف لائیں. 2 لیڈیز کم سے کم، ایک کا ساتھ دینے کے ایک لیے، اور ایک ہیں ہمارے آئیں کیا وہ ہمارے، اور ایک محترمہ ضلعی کنوینر نہیں ہے نا، بزی ہیں کیا؟ اچھا بات کریں نا، ٹھیک. تو آئیے. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی کرے.